Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and you can also click the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is especially run by the professional expert. You can follow us also Facebook page or join Instagram page, and also join our Telegram group. If you have any query regarding the study material or live classes, as presently we are also running the quick revision classes and test series, so for that you can contact us our mail id, or you can also contact us our whatsapp number is mentioned in the description box. We are also providing the previous year question bank, practice set question bank and quick revision notes. So for these things you can contact us our mail id and whatsapp number, that is 7426888640. This number is also mentioned in the description box, so you can check from there. Now, as you all of you know that in our previous series we are discussing about the previous year questions, all of the branches of the home science like FN, your textile, HD, FRM, and all the series are going on, and this is the 2012 year of that series is going on. In this video we are going to discuss about the research methodology section, because as you all of you know that in the recent as the syllabus and a little bit have changes about the exam when NTA is going to conduct the exam now the time. So last unit, in every unit last topic that is your included with the research methodology section, that is lots of things are added on that. We will update more information on that also, but in this video we are going to basically discuss about the question that is your related to the research methodology, or you can say that some part are also correlated with your extension, because sometimes they will touch with these questions. Okay, so first of all we are going with the first question, that is deliberate manipulation of people beliefs, values, behavioral through word, gesture, images are known as. शब्दों, इशारों, चित्रों के माध्यम से लोगों के विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार में जानबूझकर हेर फेर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज फॉर दैट इज योर नोन एज अ प्रोपोगेंडा. एज इन द अर्लियर वीडियो I have already explained like what is the propaganda, what is the publicity, what is the persuasion and perception. So please go and check the extension part video so you can easily correlate the description and all the things related to this one. This is also related your research part. Now coming with the second question, that is your directly to the research part, and this is a very easy question. See, when you are going to prepare the research methodology, it is the very important. Just learn about the probability sampling, non-probability sampling, and there are various tests. So just basic definitions, their symbols and why which purpose these basic tests are used, क्यों used होते हैं, क्या पर्पज़ होता है, बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होता है. कई बार बेसिक क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि ये टेस्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है, कौन सा टेस्ट है, किसके लिए लगाया जाता है, कंपैरिजन के लिए लगाया जाता है, 30 ग्रुप्स के लिए लगाया जाता है या उससे कम के लिए लगाया जाता है. तो ये सब बहुत ही ईजी सेक्शंस होते हैं, तो इसको आप जब बार बार रिवाइज करेंगे देन you come to know about the right answer for that. Now I am going to take in this question, that is your chi-square test is used. chi-square जो टेस्ट है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, and the right answer is your option A, that is when there are only two groups for comparison. So like you can say that there is another options are also written down, that like frequencies, like accuracy of data, like when there are measure, mode, design, repeat, like that. But the most suitable answer related to the chi-square test, that is when we are comparing two groups, so that is your basically chi-square test. So right answer is option A. Now coming with the next question, that is the most appropriate statistical test for analyzing qualitative data. अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, क्योंकि जब आप रिसर्च मेथोलॉजी की बात करते हैं तो अगेन आई एम गोइंग टू से दैट, अब यहाँ पे हमने जैसे डेटा के बारे में बात करी कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं. सो दीज आर द वेरी बेसिक. सो गाइज जस्ट प्रिपेयर दीज थिंग्स, दीज पॉइंट्स, दीज टर्म्स फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इन्होंने बात करी है आपकी क्वालिटेटिव डेटा की,
जो कि बेसिकली आपके नंबर्स में नहीं होते हैं, क्वालिटी के टर्म्स में हम बात करते हैं। और ऑप्शन में अगर मैं हिंदी में जाती हूँ, दैट इज़ योर गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण है। तो इसमें इन्होंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं और उनको आपने कोड्स में दे रखा है, पियर्सन टेस्ट, साइन टेस्ट एंड क्रुस्कल वैलिस टेस्ट और एफ टेस्ट। और जो आपका राइट आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन डी, दैट इज़ योर सेकेंड यानी कि साइन टेस्ट, और थर्ड दैट इज़ योर क्रूशियल वैलिस टेस्ट। ये दोनों इसके राइट आंसर हैं। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं कि साइन टेस्ट क्या होता है और दूसरा इन्होंने बात करी है क्रूशियल वैलिस। और ये किसके टर्म में बात कर रहे हैं, ये क्वालिटेटिव डेटा के टर्म में बात कर रहे हैं। अगर स्टैटिस्टिकल टर्म के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली साइन टेस्ट इज़ द दोज टेस्ट, मतलब बेसिकली स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं दो साइज ऑफ टू ग्रुप्स। इन दिस इज़ बेसिकली अंडर द नॉन पैरामेट्रिक और यू कैन से दैट द डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट विच मीन्स टेस्ट डजेंट एज्यूम द डेटा कम्स फ्रॉम द पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से दैट। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे आपकी जो बात हुई है दैट इज़ योर क्वालिटेटिव डेटा। तो इसके टेस्ट से ही आपको पता चल जा रहा है कि साइन टेस्ट में आपकी क्वालिटेटिव डेटा की ही बात हो रही है, क्योंकि इसमें बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको बताया जब मैं इसको पढ़ा रही थी आपको स्टार्टिंग में कि इसमें ये नॉन पैरामेट्रिक होता है और उसमें डेटा को एज्यूम जो होता है वो बेसिकली नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नहीं होता। तो इसकी वजह से आप इसको पता कर सकते हो कि ये इससे रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग विद द क्रूसिकल वैलिस टेस्ट, जिसको बेसिकली इसको हम एक रैंक के थ्रू डिनोट करते हैं। और जो ये टेस्ट होता है बेसिकली इसको हम वन वे एनोवा के भी उससे डिनोट कर सकते हैं। अब एक और नया टर्म मिल गया आपको जब आप इसको पढ़ोगे, तो व्हाट इज़ द वन वे एनोवा, व्हाट इज़ द टू वे एनोवा, व्हाट इज़ द थ्री वे एनोवा, एनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इसके लिए आप बेसिकली इसको, और ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक मैथड होता है जहाँ पे आप सैम्पल के ओरिजिनेट कहाँ से हुआ और सेम डिस्ट्रीब्यूशन में है और बहुत सारी चीज़ें। तो रिसर्च मेथोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिटेल में जाते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो जस्ट प्रिपेयर इट इन लाइक डिटेल मैनर बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछने वाले हैं। आज के टाइम पे वो एग्जाम्पल ज़्यादा पूछते हैं, तो जस्ट प्रिपेयर इन दैट मैनर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर वेरी इजी वन। असर्शन में ये पूछते हैं ए नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज स्क्वेड डिस्ट्रीब्यूशन। गैर सममित वितरण को तिरछा वितरण भी कहा जाता है, दैट इज द असर्शन एंड रीजन इज फॉर दैट इन अ स्क्वेड डिस्ट्रीब्यूशन द लेंथ ऑफ one of the tails relative to the central section is disproportionate to the another। तिरछे वितरण में एक पूंछ की लंबाई केंद्रीय खंड के सापेक्ष दूसरे के लिए अनुपातहीन होती है। तो पहले में इन्होंने ये बताया कि गैर समित वितरण को तिरछा भी कहा जाता है, और फिर वो उसकी डिटेल के बारे में बता रहे हैं कि जो इनका तिरछा वितरण होता है वो एक पूंछ की लंबाई केंद्रीय खंड के सापेक्ष के दूसरे उसमें अनुपातहीन होती है। और इन्होंने इसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं, कोड्स भी दे रखे हैं कि कौन सा राइट है। तो राइट आंसर आपका है ए, दैट इज बोथ ए एंड आर इज द ट्रू एंड अनडाउटली आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज द वेरी वेल नोन आंसर एंड इट इज़ वन ऑफ द इजी क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कम टू द मोस्ट फेवरेट एंड वेरी मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड कि सीक्वेंस द फॉलोइंग, कि आप इसको लोवेस्ट से हाईएस्ट कि रैंक में आपको इसको दिखाना है, निम्न में से उच्चतम तक माप के निम्नलिखित पैमानों को देखें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का बिफोर रिवीलिंग द ऑप्शन, कि आप इसको ऐसे याद कर लें, इस कीवर्ड से याद कर लें, दैट इज़ योर नॉयर, NOIR। देन यू कैन ईजली लाइक टैकल द क्वेश्चन एंड योर ऑप्शन दैट इज़ योर सी इज़ द राइट आंसर। कि सबसे पहले आपका आता है नॉमिनल, फिर आपका आता है ऑर्डिनल, फिर आपका आता है इंटरवल एंड देन आपका आता है रेशियो स्केल। सो दीज आर द लाइक सीक्वेंस, NOIR ये आपका सीक्वेंस होता है। और इसके साथ साथ इसके जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं, लाइक इंटरवल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, इसमें किसके बारे में बात करते हैं, क्या सीक्वेंस होती है, क्या सीरीज़ होती है, ये सब भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट प्रिपेयर इन आर लेटर ऑन वीडियो वी विल अपडेट द मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वीडियो। हम इसके स्केल के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे कि इसके विद एग्जाम्पल्स कैसे इसको आप समझ सकते हो। सो टिल दैट यू हैव टू जस्ट वॉच।
Coming with the next question, that is one of the most easy question, you can say that triggering the mind of the participants to finding out solutions of a problem is called as. किसी समस्या के समाधान को पता लगाने के लिए प्रतिभागियों के दिमाग को ट्रिगर करने को क्या कहा जाता है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. द राइट आंसर इज योर डी, दैट इज योर ब्रेन स्टॉर्मिंग. Now let's coming with the next question, that is a match the following symbol. Various times, maybe this time they will change the two options from there or maybe one options from there, but various times like this type of questions are asked. maybe वो यहाँ पे कोई दूसरे टेस्ट का सिंबल बना दें या कोई और सिंबल बना दें कि आपको पूछने के लिए. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ योर बी. बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग. कि अगर ए का चौथा नंबर अगर देखा जाए तो एम डी का दैट इज़ योर मीडियन, इससे आप शो करते हो. देन आपका बी का थर्ड नंबर दैट इज़ योर, दिस इज़ द योर सम अप सिंबल. एंड देन सी का फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ योर काई स्क्वायर इज़ लाइक दैट, देयर इज़ अ सम लाइक typing mistake, you can say that. And last one, that is your fourth, that is right option is like that, mean. So various time they will ask this question, maybe 1 to 2 options has been changed or will be changed for the exam. So just prepare all the symbols and their representative name for the statistical test. Now moving forward for the next question, that is asking for a group of person whom an individual consults before taking an important decision is known as. इफ़ आई एम टेकिंग इट इन अ हिंदी, व्यक्तियों का एक समूह जिनके पास एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले व्यक्तिगत सहमति होती है, उसको रूप में जाना जाता है. एंड द राइट आंसर इज़ योर ऑप्शन सी, रेफरेंस ग्रुप. आई हैव already told you about that, what is the formal, what is the informal, this is the well known, what is the interest group. I have just explained all the things in our previous video, so you can just go and check from there. And the right answer for this question, that is your option C. So thank you so much guys for watching the video, and stay healthy, stay fit. Thank you, keep watching.